Hello students, welcome to our channel Basic Concept and I am Tinal Sachdeva. Today's session is for class 10 Maharashtra State Board students, that is 10th SSC students. Today we'll be starting with Science and Technology Part 1 first chapter, that is gravitation. So what I have done is the entire chapter I have divided into small parts. Each part will be taken in separate videos. So today is gravitation lecture number 1, wherein I'll be covering 3 topics. 1. Force. 2. Newton's laws of motion. And 3rd, centripetal force and circular motion. So get your pen and notebook ready. Dear students, for class 10 preparation, that is board exam preparation, what you need to do is prepare your own notes. और क्या करना है, जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते हैं मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये टॉपिक इज फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट या फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. उस तरह से आप अपने मार्जिन्स को मार्क कर सकते हो विद स्टार कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नॉलेज के लिए, ये बाय हार्ट करना है, all that stuff. There's nothing to buy heart this year. Now SSC board has changed their pattern to put by hearting work नहीं है. Everywhere you have to understand the concept. It is quite simple. Understand the concept and application. अगर आप आपका क्वेश्चन पेपर देखो, उसका नाम भी चेंज हो चुका है. It has become an activity sheet. So basically the board wants you to understand rather than memorize anything. Clear? So welcome to our first lecture today. So let's begin with our first topic, that is force. Topic number 1 is force. If you look at your textbook, your chapter starts with 3 questions. If you understand this topic properly, you will be able to answer those 3 questions. Now, the first question mentioned there is, what are the effects of force on an object? For this, we'll have to understand a situation. Imagine your friend is riding a bicycle and you apply a force. Now, let us try to understand what is a force. In simple language, force is a push or a pull, right? There are other definitions, but right now you just focus on force going to be a push or a pull. So imagine your friend is riding a bicycle and you apply a force, and this time the force is a pull from backside. So what will happen? Suppose your friend is going at some speed. So when you pull it from behind, his speed is going to decrease. Very good. And if your force is good enough, you may make that object, that bicycle, stop. So what are the effects of forces? 1, it may reduce the speed, or it may even make a moving object stand. Right? Moving an object come to a rest. Okay, now this time you are going to apply another force. Imagine same situation, a friend is riding a bicycle and this time your force is the push. So what is going to happen? His speed will, very good, increase this time, right? So when you pull, his speed was reducing. When you push, his speed was increasing. So what are the effects of force? For me, the first effect is change in speed. Change in speed. Right or wrong? Change in the speed would be, the speed would increase, the speed would decrease, right? Now, imagine this object, the marker on my hand. It is stationary. Now, if I push, what will happen? It will be set in motion. So force can set stationary objects in motion. Stationary objects in a motion, right? Objects which are stationary, it can cause motion in them, or it can
make moving objects in motion come to rest, right? Make moving object come to rest. Clear? Now, for third thing, imagine you're playing a football and your friend has passed you the ball from, let us say I am the one who's playing and my friend has passed me the ball from my left hand side. And where you are sitting right now is the goal post and I'm supposed to hit the goal post. So he'll pass from the left. So what is the direction of the object, the ball? It is coming towards me. So I'll apply a force from this side so that the ball travels towards the goal post. So what has happened? Its direction has changed. It was coming towards me. Now it is going towards you. So force can also cause change in direction. Now all these things I can combine them. Speed and direction is velocity. So I can say it can cause change in velocity. Clear? Now let me take one object. You might have seen this stress buster balls. Suppose this is a ball, circular in shape, and I apply a force from this side. So what happens to the shape of the ball? It becomes somewhat flattened, right? The shape changes. Now this kind of a flattened shape is called as an elliptical shape. Ellipse. ये word इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ because you're going to need it later on in the chapter. So it can also cause change in shape. Change in shape. Clear? तो फोर्स, द फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्स क्या क्या कर सकता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोर्स का क्या इफेक्ट होगा? These are the effects of force on an object. Clear? Just in case, if you feel I'm going fast, you can pause the video and re-see it. Right? Okay, I'll erase it. Now, let me go a little further and talk something more about force. I told you, in simple language, force is nothing but a push or a pull. Imagine you want to open the door. So what are you going to do? You're going to pull the handle towards you. When you want to close the door, you will push the handle towards the frame of the door. That means in order that I apply force on the door, I'll have to touch the handle or touch the object, right? If this is an object and I want to apply force, I'll have to touch it, right? So the second question mentioned there is, what are the types of forces that you know? Right? So for me, the first type of force is nothing but a contact force, wherein I'm going to touch the object. So what are the examples of a contact force? I will say normal reaction force. Right? When I'm standing on the floor, I am applying some force on the tiles that I'm standing, and tiles would be applying a normal force, right? We have learned this in Newton's third law. Clear? Then, suppose if I roll a ball, right? I had a ball with me, and if I roll it on the floor, what will happen? It will go on moving endlessly? No, it will stop. Why it will stop? Because when the ball is rolling, look at this. When the ball is rolling on the floor is applying a force in the opposite direction. The ball is going forward, the floor is applying a force in the backward direction. And what is this force? This force is called as a frictional force or friction. And look at this friction force. This is because the ball surface and the floor surface both are in contact with each other. So this is also a contact force. You learn about plenty of other contact forces in your class 11th and 12th, like tension in the string and all. Right now, we'll just focus on what are the types of forces that I know. I know one is a contact force and another, absolutely right, दूसरा है non-contact force.
right? A force is applied where there is no contact between object. Can you tell me some examples of it? For example, if I have a magnet, right, and I have some iron filings, right, iron nails, लोहे के nails है, कीले हैं. So what will happen? This magnet will pull these iron nails towards itself. Are they both in contact? No. This is a non-contact force. What is this force called as? It is called as a magnetic force. Right? Do you know what happened if I bring another magnet here close to this and north pole is facing this north pole? They will repel each other. Right? Iron filings को क्या कर रहे थे वो? Attract कर रहे थे. North pole साथ में रहूंगा तो repel करेंगे. So what are these types of these forces? These are attractive forces as well as repulsive forces. Next is electrostatic force, which is it? Electrostatic force. Now what is an electrostatic force? You might have learned in your lower standards, right? Some charges, positive, right? And suppose you have some other charges here, positive. So this is positive charge on a surface. This is positive charge on another surface. What will happen? These positive charges will repel each other. Suppose you have a negative charge. What will happen? They will attract each other. So these kind of charges, and when this will happen, the surfaces may not be in contact. Right? So these are again electrostatic forces, which are non-contact forces, and they take place without the contact of the two bodies, right? So they are attractive as well as repulsive. आगे चलते हैं. Next is a gravitational force. Gravitational force. Yeah. Here I will give you an introduction of gravitational force also. Have you heard about gravitational force? Now, if I give you an example of a story, right, you will immediately remember. Remember Newton, Isaac Newton sitting under the apple tree? Yes, absolutely right. And an apple tree fell down, and then he started visualizing कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ये साइड में क्यों नहीं चला गया, और ये अक्रॉस क्यों नहीं गिरा, या ये ऊपर आसमान में क्यों नहीं चला गया. That all led to this force that is called as gravitational force. Now जब apple और अर्थ ने एप्पल को खींचा अपनी तरफ, राइट, दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. तो एप्पल नीचे गिरा. वाज एप्पल एंड अर्थ इन कांटेक्ट विद ईच अदर? नो, राइट, दे वर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर. सो दिस इज आल्सो अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स. Gravitational force is only attractive in nature. Yeah? This is an attractive force. तो अगर मुझे कोई पूछता है कि what do you know about gravitational force, I'll say right now I'll know plenty of things as this chapter gets over, but right now I'll say it's an attractive force. हमेशा दो objects एक दूसरे को attract करते हैं, that's gravitational force, and it's a non-contact force. Now we will try to imagine that situation wherein the apple fell from the tree, right? So Newton was sitting, and imagine this as an apple, and if you release this apple from here, it will fall straight down. Now I'll try to show you again the motion. The motion is vertically downwards. तो न्यूटन ने सोचा कि ये ऐसा क्यों नहीं गया, ये हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं गया, ये ऊपर ही क्यों नहीं निकल गया. तो डेफिनेटली when he thought about all this, he came to a conclusion that this earth might be attracting this. So an apple which is at certain distance was attracted by the earth. तो उन्होंने सोचना शुरू किया क्या ये मून को भी अट्रैक्ट करता होगा, right? So he started thinking more. So the situation is, this is an earth and it attracted the apple. So was it attracting the moon also? Right? We know moon moves around in a circular orbit around the earth, right? So
क्या उसके मोशन का कोई इस फोर्स के साथ रिलेशन है, और क्या उस मून को अर्थ अट्रैक्ट करता है, क्या दूसरे प्लैनेट्स भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, इज देयर एनीथिंग लाइक दैट, डू स्टार्स अट्रैक्ट, ऑल दिस ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट. सो नेक्स्ट with this we come to our next topic, which is a force and a motion. क्या फोर्स और मोशन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है? And the answer we have already learned about it last year, right? We had our first chapter which was related to motion and laws of motion, right? Newton's laws of motion, where we learned about force and motion. Okay, here also we are just going to revise Newton's laws of motion before we move further. Newton's laws of motion before we move further. आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं. Do you remember how many laws of motion? How many laws of motion we have learned last year? Yes, 3 laws of motion. क्या हमको वो तीनों आते हैं? शायद एक आता है, which is the simplest, the last law. ना, to every action there is equal and opposite reaction. That is the third law, which is very easy and everybody knows that. ठीक है, हम कोशिश करेंगे तीनों लॉज जानने की. तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ जानते हैं. फर्स्ट लॉ, राइट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. और क्या था वो लॉ? इट वाज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. क्या है? इनर्शिया. तो सबसे पहला हम इनर्शिया को समझने की कोशिश करेंगे. सपोज मेरे पास एक मार्कर है और उसको मैंने टेबल पे रख दिया, राइट, एंड आई कम बैक टुमारो एंड नोबडी इज एंटर्ड इनटू दिस रूम इज क्लोज, और वो मार्कर जाके मैंने टेबल पे रख दिया. सो व्हेन आई कम टुमारो, विल आई फाइंड इट डिस्प्लेस्ड? क्या वो और किधर चला गया होगा या वहीं पे रहेगा? राइट, वो वहीं पे रहेगा. क्यों? क्योंकि कोई आया नहीं, किसी ने इसके ऊपर कुछ धक्का नहीं दिया, इसको पुश नहीं किया, पुल नहीं किया, दैट मींस इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं किया. तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया वो है कि बॉडी जैसा है वैसा ही रहना पसंद करता है. मतलब बॉडी अगर स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहना पसंद करता है, बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करता है. कब तक? जब तक कोई बाहर का फोर्स नहीं आता है. सो व्हाट इज इनर्शिया? हमारा डेफिनेशन है टेंडेंसी ऑफ द बॉडी. इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी. क्या करना? टू रिमेन. टू रिमेन, सिंपल वर्ड में बोलूंगा, एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहना पसंद करेगा. और तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है बॉडी वैसा का वैसा ही रहता है unless and until body remains as it is, जैसा है वैसा ही रहता है. कब तक? Unless an external force acts on it, जब तक कोई बाहर का फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बॉल रोल करूं तो वो रोल होता ही रहेगा. हकीकत में ऐसा होता है? नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है. कौन सा फोर्स है वो? फ्रिक्शनल फोर्स. उसकी वजह से बॉल रुक जाता है. अगर मैं फ्रिक्शन अवॉइड कर दूं तो बॉल मूव करता ही रहेगा कंटिन्यूअसली. या फिर सिंपल अंडरस्टैंड करना है तो अगर मैं एक मार्कर को बेंच के ऊपर रख दूं तो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, राइट? जब तक, कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता. एंड दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. Since we have done all this in our previous classes, I'll go a little fast here, right? Let me go on to Newton's second law, right? Let me go on to Newton's second law. सेकेंड लॉ पढ़ने के लिए, जैसे फर्स्ट लॉ पढ़ने के लिए मुझे इनर्शिया पढ़ना पड़ा, वैसे ही सेकेंड लॉ पढ़ने के लिए मुझे एक वर्ड को समझना पड़ेगा, वो है मोमेंटम. तो मुझे समझना पड़ेगा ये मोमेंटम क्या है. मोमेंटम समझने के बाद तो ये सेकेंड लॉ मेरे लिए आसान हो जाएगा. तो पहले मोमेंटम समझने की कोशिश करते हैं. नाउ इमेजिन
batsman is batting, right? And a fast bowler is bowling to him. तो हम इमेजिन करते हैं कि विराट कोहली बैटिंग कर रहा है और कोई भी फास्ट बॉलर ले लेते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है बहुत फास्ट. आई इमेजिन टू सिचुएशंस. एक सिचुएशन है कि वो एक सीजन बॉल के साथ बॉल कर रहा है, सीजन बॉल लेदर बॉल के साथ बॉलिंग कर रहा है. और दूसरा कंडीशन है कि वो फास्ट बॉलर टेनिस बॉल के साथ बॉलिंग कर रहा है. दोनों सिचुएशन में वो सेम स्पीड से अगर बॉलिंग कर रहा है तो फर्क क्या होगा बैट्समैन में? कैन यू गेस? जब वो सीजन बॉल से बॉलिंग कर रहा है, जब वो लेदर बॉल से बॉलिंग कर रहा है, तो विराट कोहली वुड बी वेयरिंग पैड्स एंड ऑल, राइट? क्योंकि अगर ये लग गया तो बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत सारी ये होने का चांसेस है, बोन ब्रेक होने का चांसेस है, राइट? बहुत जोर से लगने का चांसेस है. पर अगर टेनिस बॉल है तो उसको पैड पहनने की जरूरत नहीं, भले वो बॉल उसी स्पीड से आता हो, राइट? तो मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट होने वाला है या विराट कोहली के ऊपर जो इम्पैक्ट होने वाला है वो लेदर बॉल से ज्यादा होगा और टेनिस बॉल से कम होगा, जबकि वो दोनों सेम स्पीड से उसकी तरफ आके उसे लग रहे हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? हियर वी विल अंडरस्टैंड मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज इफेक्ट. मोमेंटम को हम लिखते हैं P. It is effect. It is product of mass into velocity. जितना ज्यादा मास, इसका ज्यादा मास, तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, राइट? अब मैं इमेजिन करता हूं कि लेदर बॉल से ही मैं आपकी तरफ ये फेंक रहा हूं, एक स्लो स्पीड से फेंक रहा हूं और एक जोर से खींच के फेंक रहा हूं. कौन से समय मुझे ज्यादा मार लगेगा? जब स्पीड उसका बढ़ जाएगा. तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. नाउ लेट्स ट्राई टू इमेजिन दिस. व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? हमेशा याद रखो, फिजिक्स में जब कभी भी ये शब्द दिखाई दे चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, राइट? सपोज मेरे को 10 मार्क्स मिले एक यूनिट टेस्ट में और बाद में सेकेंड यूनिट टेस्ट में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मेरे को 10 मार्क्स मिले, सेकेंड यूनिट टेस्ट में मेरे को 12 मार्क्स मिले, right? This is the first thing that has happened. This is the second thing that has happened. So if somebody is asking me what is change, change is final minus initial. So it will be 12 minus 10, that is 2. अगर बाद में मुझे कम मिले होते 8, तो क्या हो जाता? 8 minus 10, that is minus 2. The change would have been minus 2. तो हमको क्या याद रखना है? हमको ये याद रखना है कि चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. अच्छा, और एक चीज है जो हमको फिजिक्स में पता होनी चाहिए, वो है रेट. RATE. रेट मतलब एनीथिंग अपॉन टाइम. नॉर्मल लैंग्वेज में हम रेट जो पूछते हैं वो मनी से रिलेटेड रहता है, इस चीज का रेट क्या है. पर फिजिक्स में जब कभी भी हम रेट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक यूनिट टाइम में क्या हो रहा है, दैट इज रेट. That means we divide it by time. Clear? तो अगर मैं ये दोनों चीजों को कंबाइन करूं, किसको? चेंज इन मोमेंटम और रेट, तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, राइट? चेंज इन P अपॉन टाइम. इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. इससे रिलेटेड हमारा सेकेंड लॉ है, जो कभी कभी बच्चे लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेमोराइज करने के लिए, बट इस तरह से आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो उन चीजों को, तो शायद सेकेंड लॉ समझना बहुत आसान हो जाएगा. तो क्या बोला है सेकेंड लॉ में? कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स को. किसी भी बॉडी का मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है
फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस लेदर बॉल और ये मूव कर रहा है, तो इसके पास कुछ मोमेंटम है। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अगर इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, राइट, या तो ये जोर से जाने लगता है या कम स्पीड से जाने लगता है। कब हो सकता है ऐसा? उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम कब होगी? जब कभी भी फोर्स अप्लाई होगा ना। फोर्स के बिना उसकी स्पीड बंद हो बढ़ेगी ना कम होगी। तो क्या है ये सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये फोर्स पे डिपेंडेंट रहेगा डायरेक्टली। जैसे तुम फोर्स बढ़ाओगे वैसा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा। क्लियर? इस पे से हम एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन पे आए थे लास्ट ईयर, दैट इज F इज इक्वल टू ma। इस साल इन चीजों का ज्यादा तो जरूरत नहीं है, बट क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मेंशन है तो आई डिसाइडेड दैट वी विल जस्ट रिवाइज इट वंस। क्लियर? दीज आर द टू लॉज, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। थर्ड लॉ हम सबको मालूम है, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। सो व्हाट इज द थर्ड लॉ? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, Newton's third law of motion. To every action there is equal and opposite reaction. Is this clear? So we have finished two topics. One is force, another is Newton's law of motion. Clear? Let's move to the third topic. And the third topic is circular motion and centripetal force. Circular motion and centripetal force. Now, class 10 स्टूडेंट, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लेसन को किस तरह से पढ़ा जाए, चैप्टर को किस तरह से रिवाइज किया जाए। हमने दो टॉपिक किए, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये दोनों टॉपिक नॉलेज के लिए है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू राइट इन द बिगिनिंग, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। उस नोट्स में तुम वो भी चीजें लिखोगे जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी चीजें लिखोगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक ये है इस चैप्टर का, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहले दो टॉपिक जो हमने किए उससे रिलेटेड टॉपिक्स, दे वर ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, राइट, पर वो भी आपको पता होने चाहिए। ओके, नाउ वी गो टू सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, बाद में इनके ऊपर के कॉन्सेप्ट सेट करेंगे या प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। सर्कुलर मोशन होता क्या है? अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, इमेजिन दिस इज एन ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा है, सो द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया व्हाट इज सर्कुलर मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो क्या होता है? क्या होगा? एक तो इसकी स्पीड होगी, जिस स्पीड से वो चलता रहेगा। वो अगर सेम है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है यूजीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है। यहाँ उसकी स्पीड चेंज भी होती रह सकती है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे कम हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी, स्पीड चेंज भी हो सकती है। एक तो मैंने उसकी स्पीड के बारे में जान लिया, नेक्स्ट मैं जानता हूं उसके डायरेक्शन के बारे में। ये दोनों चीजें मुझे क्लियरली पता होनी चाहिए। अगर बाय चांस दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, और अगर तुमको मालूम पड़ रहा है कि ये एक आदमी ऐसे चल के जा रहा है और किसी ने तुमको पूछा इसका डायरेक्शन क्या है, तो तुम बोलोगे इसका डायरेक्शन है ईस्ट। अब अगर मुझे वो आदमी यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, इसका डायरेक्शन इज ईस्ट, राइट, वैसे जा रहा है, तो मेरे को कोई पूछेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो मैं पूछूंगा नहीं उसको कि कौन से पॉइंट पे। सर्कुलर मोशन में अगर मुझे कोई पूछ रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो मैं उसको पूछूंगा कहां पे, क्योंकि इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अच्छा, अब जानते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। हमने ज्योमेट्री में एक टर्म पढ़ा है, टैंजेंट, राइट।
टेंजेंट समझने की कोशिश करते हैं अगर नहीं पढ़ा है तो। एक सर्कल और लाइन जब एक दूसरे को सिर्फ टच करते एक पॉइंट में ना, एक सर्कल और एक लाइन जब एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में टच करते हैं तो देन दैट लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट। फिर तो अगर मुझे कोई पूछता है कि इस सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन क्या है, सो व्हाट आई डू, आई आस्क हिम एट व्हिच पॉइंट, ही इज टेलिंग एट दिस पॉइंट ए, तो मैं क्या करूंगा, ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मैं बोलूंगा अगर वो सर्कुलर मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन याद रखो हमेशा, या तो ऐसा होगा, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है ना, घड़ी ऐसे ऐसे घूमती, ये ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं बोलूंगा ये ऊपर जा रहा है उसका डायरेक्शन। अगर वो क्लॉकवाइज है मतलब ये मोशन ऐसे घूमता है, सर्कल ऐसे घूमता है, या वो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, तो मैं बोलूंगा उसका डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ। कंसिडर कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैंने उसका डायरेक्शन फाइंड कर दिया। और इसको कंसिडर करूं तो साउथ में है, नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे आ जाओ तो पूछता है मुझे ये बी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या है, सेम मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और कहां पे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो मैं बोलूंगा ऐसे है उसका डायरेक्शन, ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट। यहां पे अगर पूछ लिया किसी ने सी पॉइंट पे, अगेन सेम थिंग, आई ड्रॉ वन टेंजेंट, और मैं बोलूंगा ऐसा है उसका डायरेक्शन, अपवर्ड्स ना, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे जाए। तो व्हाट डू आई लर्न कि सर्कुलर मोशन में उसका स्पीड सेम रहना जरूरी नहीं है, सेम भी रह सकता है, अगर सेम है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, तो उसका स्पीड चेंज हो सकता है और उसकी डायरेक्शन तो 100% चेंज होती है एवरी पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो हम उस मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक्सीलरेटेड मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैं कैसे बोल सकता हूँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, शायद स्पीड सेम है पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। अगर वो सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट रहेगा ही, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है डायरेक्शन। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ D और एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ E, ये दोनों पॉइंट पे भी डायरेक्शन अलग अलग, दैट मींस दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन है। क्लियर? और मुझे मालूम है जहां पे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या वो एक्सीलरेटेड मोशन होगा वहां पे फोर्स इन्वॉल्व रहेगा। मतलब सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स की जरूरत है, एक फोर्स के वजह से ही सर्कुलर मोशन होगा। इज दिस क्लियर? I'm going to erase this. सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया? उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? टैंजेंट क्या होता है? So we have a circular motion, right? सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरत है, मैंने बोला फोर्स इज रिक्वायर्ड एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, अगर ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है और वो फोर्स एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसीलिए इसको सेंटर सीकिंग फोर्स बोलते हैं। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? एक फोर्स जो सर्कुलर मोशन कॉज करता है और वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल इज, इसको इस तरह से तोड़ा है, सेंट्री सेंटर एंड पिटल इज सीकिंग, सेंटर सीकिंग फोर्स। its direction is towards the center. I hope this is clear to you.
दो चीजें पता होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। एक है सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जहां पे हम लर्न कर रहे हैं वहीं पे एक फॉर्मूला भी लर्न करते थे, mv²/r। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना, जरूरत पड़ेगी बार बार। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। m is the mass of an object that is moving along the circular path, v is the velocity जिस स्पीड के साथ होगा, एंड r is the radius of the circle। तो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, mv²/r। Now whatever I have told you in this part, the third part is very important from exam point of view, तो हर एक चीज अच्छी तरह से नोट करो। Now if I look at this circular motion, मेरे को motion of earth, not earth, motion of moon around the earth भी move ऐसा ही लगता है, right? Circular motion, that means there will be a force acting। What will be that force? That force will be the centripetal force, right? Towards the center। इसके वजह से ये मोशन हो रहा है, right? This is the force acting on this, इसके वजह से ये मोशन हो रहा है। So this is the centripetal force। अच्छा, अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता, उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। Imagine you have a thread, एक धागा है, उसके पत्थर बांधा हुआ है, राइट? एक धागा है, उसको पत्थर बांधा हुआ है। अगर मैं इस पत्थर को यहाँ से पुश करूं, यहाँ से पुश करूं, राइट? यहाँ से इस पत्थर को मैं पुश करूं तो व्हाट विल हैपन, ये यहाँ जाएगा, राइट? और रिटर्न आएगा। जब रिटर्न आएगा तो वो यहाँ तक आएगा, राइट? ये उसका पाथ हो, पेंडुलम जैसे। अगर इसको मैं जोर से पुश करूं तो ये यहां तक जाएगा और रिटर्न यहां तक आएगा। Are you getting what I'm trying to say? अगर जोर जोर से पुश करने शुरू कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो एक सर्कुलर मोशन कैरी आउट करेगा, राइट और नो, राइट? ऐसा ही एक डायग्राम तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। क्या है, there is a girl, उसके हाथ में एक थ्रेड है, पत्थर बांधा हुआ है और स्विvel कर रही है, राइट? तो ऐसे घुमा रही है तो सर्कुलर मोशन करता है वो पत्थर। अच्छा, अगर बाय चांस उस लड़की ने उस पत्थर को छोड़ दिया, उस धागे को छोड़ दिया, जो फोर्स एक्ट करता है वो बंद हो जाए, राइट? नो दिस प्रॉपर्ली, एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, इसके वजह से ये पत्थर घूम रहा है, राइट? अगर मैंने इस फोर्स को, इस रस्सी को काट दिया या इस रस्सी को छोड़ दिया तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है वो बंद हो जाएगा। जब वो फोर्स एक्ट होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो पत्थर घूम रहा था वो घूमता ही रहेगा इन द डायरेक्शन वेयर इट लेफ्ट, जहां पे उसने छोड़ा वहां पे उसका जो डायरेक्शन है। कैसे पता करा हमने उसका डायरेक्शन, टैंजेंट। तो ये पत्थर स्ट्रेट ऐसा चला जाएगा। Are you getting it? जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैंने छोड़ा तो वो ऐसा स्ट्रेट चला जाएगा, इस पॉइंट पे अगर मैंने छोड़ा तो वो ऐसा स्ट्रेट चला जाएगा। जहां पे उसके ऊपर वो फोर्स एक्ट करना बंद हो जाएगा वहां पे वो अपना पाथ कंटिन्यू करेगा। कब तक, जब तक उसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, तब तक वो स्ट्रेट जाता ही रहेगा। जैसे कोई दूसरा फोर्स एक्ट करेगा, यू माइट हैव सीन हैमर थ्रो, ओलंपिक में वो लोग ऐसे गोल गोल घुमा के छोड़ते हैं तो वो जाते ही नहीं रहता, वो एक जगह जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, जैसे जैसे जाने लगता है उसको और नीचे खींचेगा, राइट? उसका वेट के हिसाब से उसको नीचे खींचा जाएगा और वो एक ट्रैजेक्टरी मोशन करके आके गिर जाता है। इज दिस क्लियर? तो इसको मैं कैसे रिलेट करूं उस पॉइंट के साथ कि एक मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और सपोज ये जो फोर्स है इसके ऊपर एक्ट होना बंद हो जाए
तो क्या हो जाएगा, स्पेस में तो वैक्यूम है, ये सीधा निकल जाएगा, कहाँ जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, जब तक कोई फोर्स उसे अट्रैक्ट नहीं करता था। अगर ये फोर्स एक्ट करना बंद हो जाए तो क्या ऐसा फोर्स दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी एक्ट करता है? सोलर सिस्टम में देखा, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते रहते, तो सारे प्लैनेट्स पे भी एक्ट करता होगा। इसके बारे में हम थोड़ा आगे चलेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। I'll be preparing small lectures wherein few topics will be covered. तो कोशिश ये करेंगे हम कि धीरे धीरे थोड़े छोटे टॉपिक्स को अच्छी तरह से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।